Hi everyone, welcome back to my channel. So this is the second video of dental radiology series. तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं that is factors that control the X-ray beam. पहली वीडियो में हमने एक्सरे प्रोडक्शन डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम वो फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो एक्सरे के बीम को कंट्रोल करते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग नोट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर इज द एक्सपोजर टाइम. एक्सपोजर टाइम क्या होता है कि कितनी देर के लिए आप पेशेंट को एक्सरे से एक्सपोज कर रहे हो. सो दिस इज द एक्सपोजर टाइम. Now what happens, how is it related to our X-rays? See, अगर हम exposure time को increase करते हैं as studied in the last video, now exposure time ज़्यादा है, so कैथोड से ज़्यादा number of electrons निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा electrons एनोड के ऊपर strike करेंगे and ज़्यादा से ज़्यादा X-rays will be produced, right? So if we are going to increase the exposure times, the number of electrons that are produced, they are going to increase and more number of electrons are going to strike the anode. Therefore, more number of X-ray photons will be produced. So, is it right to say कि exposure time जो है that is directly proportional to the quantity of X-rays that are produced? जितना ज़्यादा एक्सपोजर टाइम होगा उतनी ज़्यादा एक्सरेज की क्वांटिटी हमें मिलेगी. इफ़ वी आर डबलिंग द एक्सपोजर टाइम then the number of X-rays that are produced will also be doubled, right? So this is one concept. Now there are two important terms that you should know about. The first is the density and the second is the contrast. We are going to see कि जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है एक्सपोजर टाइम, वो किस तरीके से इन दोनों फैक्टर्स से रिलेटेड है. डेंसिटी क्या होता है? सी, डी से डेंसिटी एंड डी से डार्कनेस, डार्कनिंग. ओवरऑल डार्कनिंग ऑफ द रेडियोग्राफ, ओवरऑल डिग्री ऑफ डार्कनिंग ऑफ द रेडियोग्राफ इज नोन एज द डेंसिटी. आप देखते हो जब एक एक्सरे को वो कितना डार्क है, कितना ज़्यादा डार्क है वो, दैट इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ द एक्सरे. सो एक्सपोजर टाइम को अगर मैं इंक्रीज करूं तो डेंसिटी का क्या होगा? एक्सपोजर टाइम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकलकर एनोड पर जा रहे हैं वो इंक्रीज होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स reaching the anode will increase and the number of X-rays which are produced will ultimately be increased. Therefore, the density of the X-ray will also increase. So, it is correct to say that the density of a radiograph is directly proportional to the exposure time. Okay, I hope this point is clear to you. Now, The second is contrast. कंट्रास्ट एक रेडियोग्राफ का क्या होता है? कंट्रास्ट का मतलब होता है कि डेंसिटीज के बीच में डिफरेंस कितना है. लाइक आप देखते हो एक रेडियोग्राफ के ऊपर पर्टिकुलर एक एरिया जो है, एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो ज़्यादा डार्क है, एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो थोड़ा कम डार्क है. तो इन डेंसिटीज के डिफरेंस को हम कंट्रास्ट बोलते हैं. नाउ हाउ इज दिस एक्सपोजर टाइम, हाउ इज दिस फर्स्ट फैक्टर रिलेटेड टू द कंट्रास्ट? देन रिमेंबर कि कंट्रास्ट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपोजर टाइम. Contrast is not influenced by the exposure time. Is it clear to you? We have discussed the first factor that controls the X-ray beam, which is the exposure time. Now, after the exposure time, the second factor that we are going to discuss here is the tube current, okay? And this is in milliampere. This is a unit of the tube current. Now, tube current क्या हुआ? As we studied in the first video, if this is your X-ray का tube, this is the cathode, okay? This is the focusing cup, this is the filament, this is the target anode, okay? Now, जितनी ज़्यादा करंट हम देंगे ट्यूब में उतना ज़्यादा द फिलामेंट इज गोइंग टू गेट हीटेड एंड उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
are going to get emitted from the cathode, more electrons are going to get produced, right? And therefore more electrons will be reaching the anode and more number of X-rays will be produced. Similarly, जैसा हमने exposure time में पढ़ा, the same concept is applicable to this tube current also. So again, this tube current, this is going to govern the quantity of X-rays. I hope you got the reason behind that. Okay. Now, I already told पिछले वाले first point में भी that we are going to discuss about two things. The first is the density and the second is the contrast. Now, again we will see कि आपका जो tube current है वो इन दोनों से किस तरीके से related है. Then वो भी similarly इन दोनों से related है जैसा हमारा first factor related था. Tube current को increase करेंगे तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. सो डेंसिटी ऑफ अ रेडियोग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्यूब करंट. सेम कॉन्सेप्ट जैसे पहले वाले में हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा ट्यूब करंट होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैथोड से, उतने ज़्यादा एनोड पर पहुंचेंगे, उतने ज़्यादा एक्सरेज बनेंगे और उतना ही ज़्यादा डेंसिटी होगा एक रेडियोग्राफ का. एंड फॉर कंट्रास्ट सिमिलरली द कंट्रास्ट is not influenced by the tube current. Now moving ahead with the third factor, which is the tube voltage, and this is measured in kVp. Okay, this is measured in kVp. Now what happens when your tube voltage is increased? See, if this is your tube, एक्सरे का ट्यूब है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, देन कैथोड और एनोड के बीच में हम एक वोल्टेज सप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं. ओके, दिस इज क्रिएटेड, हाई वोल्टेज इज क्रिएटेड बिटवीन कैथोड एंड एनोड. सो दिस वोल्टेज इज योर ट्यूब वोल्टेज. सो लेट्स सी, अगर हम इस ट्यूब वोल्टेज को इंक्रीज करें, अगर हम इस केवीपी को इंक्रीज करें, then what is going to happen? High voltage circuit will be generated between your cathode and anode. Therefore what will happen कि electrons जो कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड तक पहुंच रहे हैं, इनकी एनर्जी is going to get high. Okay, high energy electrons निकलेंगे कैथोड से and पहुंचेंगे एनोड तक. So if kVp is increased, the energy of electrons that are going to emit from the cathode, it is going to increase and strike the anode with more energy. And therefore what happens? You are going to get high energy X-rays. You are going to get high energy X-rays, right? So if kVp is increased, ultimately you are going to get high energy X-rays. Remember this point, the reason I have already explained. एक चीज़ आपने अपने केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा, let me remind you कि energy is inversely proportional to the wavelength lambda. Lambda means wavelength, E means energy. So the energy is inversely proportional to the wavelength. मतलब energy ज़्यादा होगी अगर तो wavelength कम होगा, राइट? उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स उल्टा, रिलेटेड इनवर्सली, राइट? सो अगर केवीपी ज्यादा है, हाई एनर्जी एक्सरेज मिलेंगे. हाई एनर्जी एक्सरेज का मतलब वेवलेंथ कम, सो यू आर गोइंग टू गेट शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरेज, राइट? डू यू गेट दिस होल कॉन्सेप्ट? If the kVp is increased, you are going to get high energy X-rays, but you are going to get low wavelength X-rays. Okay? एक चीज याद रखना, हमें हमेशा हाई एनर्जी एक्सरेज ही डिजायर्ड होते हैं. दिस इज डिजायरेबल. क्यों? क्योंकि अगर एक्सरेज हाई एनर्जी से प्रोड्यूस होंगे तो उनका हमारी बॉडी में पेनिट्रेशन पावर अच्छा होगा, गुड पेनिट्रेशन पावर विल बी देयर एंड देयरफॉर वो हमारी बॉडी में कम देर तक रहेंगे एंड हार्म भी कम करेंगे. सो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हाई एनर्जी एक्सरेज ही डिजायरेबल है हमारे लिए, बिकॉज हाई एनर्जी एक्सरेज
अच्छा पेनिट्रेशन पावर रखते हैं और हमारी बॉडी को कम हार्म करते हैं। क्लियर? नाउ अब हम इसका उल्टा पढ़ते हैं कि अगर केवीपी ट्यूब वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है, इफ वी डिक्रीज दिस ट्यूब वोल्टेज, इट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट लो एनर्जी एक्सरेज and this is not desirable. This is not desirable because they are more harmful to our body, right? KVP अगर कम है, कम वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया है हमने कैथोड एनोड के अक्रॉस, ओके, ट्यूब के अक्रॉस हमने लो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकलेंगे वो लो एनर्जी में निकलेंगे, लो एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे जो डिजायरेबल नहीं है बिकॉज वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि उनका पेनिट्रेशन पावर पुअर होता है, इसीलिए लो एनर्जी वाले एक्सरेज हार्मफुल होते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके? सो इट इज वेरी मच राइट टू से कि क्वालिटी एक्सरेज का, क्वालिटी ऑफ द एक्सरेज, it depends upon the KVP, it depends upon the tube voltage. Now one more thing, how is KVP, how is tube voltage related to density and contrast, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। Then remember KVP is directly proportional to the density. Same reason, logic लगाना है, जितना ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस देंगे अक्रॉस द ट्यूब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी से निकलेंगे कैथोड से, उतने ज़्यादा हाई एनर्जी एक्सरेज मिलेंगे और उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा आपके रेडियोग्राफ का। बट केवीपी is inversely proportional to the contrast. This is very important point. KVP is inversely proportional to contrast. ऐसा क्यों? Again we are going to apply logic. क्या होता है? Let's understand. If we increase the KVP, हमने देखा अगर वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलेंगे, ज़्यादा एनर्जी से आपके हाई एनर्जी एक्सरेज आपको मिलेंगे। यू आर गोइंग टू गेट हाई एनर्जी एक्सरेज विच मीन्स एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हाई एनर्जी एक्सरेज का मतलब है लो वेवलेंथ वाले एक्सरेज आपको मिलेंगे, लो वेवलेंथ वाले एक्सरेज आपको मिलेंगे। देयरफॉर ये जो है इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस वेरियस शेड्स, like in a film you will see various shades. You are going to see maybe more radio opaque, less radio opaque, more radiolucent, less radiolucent. आपके पास बहुत सारे शेड्स मिलेंगे आपको एक रेडियोग्राफ में, और इस तरीके का रेडियोग्राफ इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड बिकॉज इट हैज लॉन्ग स्केल ऑफ कंट्रास्ट। एंड रिमेंबर इतने सारे शेड्स अगर आपको ग्रे के मिल रहे हैं, लाइक यू आर गोइंग टू, इफ यू आर गोइंग टू गेट डार्क ग्रे, light gray, different shades, so many shades of gray, it's going to confuse you, no? So it's called as long scale of contrast, which is considered to be low contrast, not good quality contrast. इसीलिए हमने देखा कि KVP high होने से we get low contrast X-ray films. Remember this, ठीक है? KVP increase करने पे contrast decrease होता है. That is why I have written that KVP is inversely proportional to the contrast. And similarly, अगर आप KVP को decrease करते हो तो आपका contrast increase होता है, right? Because KVP is inversely proportional to your contrast. KVP घटेगा तो contrast अच्छा मिलेगा, contrast बढ़ेगा, ठीक है? कंट्रास्ट बढ़ने का मतलब आपके पास इतनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेड्स नहीं होंगी एक एक्सरे की फिल्म पे। यू आर ओनली गोइंग टू गेट द टू शेड्स, रेडियोल्यूसेंट एंड रेडियो ओपेक, राइट? दिस टाइप ऑफ कंट्रास्ट इज कंसिडर्ड टू बी गुड कंट्रास्ट। दिस इज कंसिडर्ड टू बी गुड कंट्रास्ट जहां पे आपके पास शॉर्ट स्केल कंट्रास्ट होता है, राइट? सो हमने अब तक क्या समझा उसको मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके बताऊं। केवीपी बढ़ेगा अगर तो हमको हाई एनर्जी एक्सरेज मिलेंगे,
जिसका फायदा ये है कि ये हार्मफुल कम होता है, इसका गुड पेनिट्रेशन पावर है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता या लेस हार्मफुल होता है। बट प्रॉब्लम ये है केवीपी बढ़ने से कि कंट्रास्ट जो है वो अच्छा नहीं होता, लो लेवल का कंट्रास्ट, पुअर कंट्रास्ट मिलता है हमको। एंड अगर मैं केवीपी को डिक्रीज कर दूं तो आई गेट लो एनर्जी एक्सरेज। एंड मैंने आपको समझाया कि लो एनर्जी एक्सरेज आर मोर हार्मफुल टू अस, दे आर मोर हार्मफुल टू अस, बट द गुड थिंग इज द कंट्रास्ट is good, we get good contrast. So KVP बढ़ाने का फायदा भी है एंड नुकसान भी है। सिमिलरली KVP घटाने का नुकसान भी है और फायदा भी है। तो अब क्या किया जाए? KVP बढ़ाएंगे तो कंट्रास्ट बुरा मिलेगा, KVP घटाएंगे तो हार्मफुल ज्यादा होगा हमारे लिए। तो व्हाट वी शुड डू? वी शुड डू एक ऐसा बीच का KVP हम रख लेते हैं कि हार्मफुल भी ज्यादा ना हो पेशेंट के लिए और कंट्रास्ट भी सही हो, कंट्रास्ट भी गुड हो, कंट्रास्ट भी बुरा ना हो। सो वी फाइंड ऐसा केवीपी जो बीच का केवीपी, एक आइडियल वोल्टेज हम ढूंढ लेते हैं। So guys, that was all for today's video. We have just studied 3 factors today in this class. The first is exposure time, the second is tube current and the third is tube voltage. Next class में हम बाकी factors को discuss करके इस topic को close करेंगे. So if you have any doubts, please feel free to comment down below and ask me. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.